ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوہسار مری پتھریاٹا چیئر لفٹ اور کیبل کار 18 مارچ سے عید کے پہلے دن تک بند رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ مری پتھریاٹا چیئر لفٹ اور کیبل کار سسٹم 18 مارچ سے 2025 سے عید الفطر کے پہلے دن تک سیاحوں کے لیے بند رہے گی۔ یہ بندش سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کے کام کے ساتھ ساتھ عید کی چھٹیوں کے باعث ہوگی۔ حکام کے مطابق چیئر لفٹ اور کیبل کار کا نظام عید الفطر کے دوسرے دن سے دوبارہ معمول کے مطابق کھول دیا جائے گا تاکہ سیاح عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حیدرآباد میں سماجی رہنماؤں کی جانب سے سفید پوش لوگوں کے لیے بچت بازار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کم قیمت میں کھانے پینے کی اشیاء لگائی گئی ہیں اور غریب مستحقین لوگوں میں مفت راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز رضوان شیخ سے۔ جی رضوان، آنکھا کیجیے گا۔ جی بالکل، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آئی اون کی جانب سے جو ہے رمضان ریلیف پیکیج کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں غریب مستحقین لوگوں میں جو ہے مفت راشن بھی بانٹا گیا ہے اور یہاں پر بازار بھی لگایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ آئی اون کے رہنما موجود ہیں، مزید اب ان سے جانتے ہیں۔ آئی اون حیدرآباد کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون کے ساتھ یہ بچت بازار لگایا گیا ہے۔ مقصد ہے مہنگائی بے روزگاری سب عروج پر ہے، عوام کو ریلیف فراہم کر سکے، جو راشن تقسیم کر سکتے ہیں، جو مستحق لوگ ان میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں، جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں، ان کو ہم 50%، 20%، 30% ریلیف کے ساتھ ہم یہاں سے چیزیں پڑھ، جیسے 1080 کا آٹا باہر ہے تو بچت بازار کے اندر اس وقت 280 روپے کی بچت ہے اور 800 روپے کا آٹا ہے۔ باہر 170 کی چینی ہے تو یہاں پر 140 کی 30 روپے پر کے جی ہے۔ اس طرح تمام آئٹمز کے اوپر رائے تھے۔ یہ آئی اون حیدرآباد کی یقیناً بچت بازار لگانے کا مقصد ہے۔ جی بالکل، آئی اون حیدرآباد کے رہنما کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بچت بازار میں جو ہے مستحق لوگ یہاں پر آئیں اور کم قیمت میں جتنا بھی سامان ہے یہاں پر آٹا، دال، چینی، ہر قسم کے سامان پر 40 سے 50% جو ہے آف کی گئی ہے۔ جی سکھر کی عوام کے مسائل جوں کے توں، میئر صاحب کے وعدے محض الفاظ ثابت ہوئے۔ میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں کیے گئے دعوے خواب بنتے جا رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ میں کرپشن کی انکوائری بھی مکمل نہ ہو پائی۔ دیکھیے جانی بھٹی کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ جی ہاں، یہ وہی وعدے ہیں جو سکھر کے میئر نے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں کیے تھے، جہاں انہوں نے 1 فروری سے عوام کو وقت دینے کا وعدہ کیا، لیکن افسوس فروری گزر گئی، مارچ آ گیا، مگر میئر صاحب کی مصروفیات کا دائرہ کراچی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، خستہ حال سڑکیں اور نکاسی آب کے ناقص انتظامات عوام کی پریشانیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر میونسپل کمیٹی کے ممبران نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر تاحال کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ 3 اسٹار کمپنی کی انکوائری کے لیے قائم کمیٹی بھی پراسرار طور پر خاموش ہو گئی ہے۔ ایک میٹنگ کے بعد کمیٹی کا کہیں ذکر نہیں۔ ہم اپنے میئر سکھر کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایکشن لیا تھا، کارکردگی میں کچھ بہتری ہوئی، لیکن جو دیکھنا ہم چاہتے ہیں اس طرح کی جو ہے سالڈ ویسٹ کمپنی ہمارے امیدوں پر پورا نہیں اتر رہی ہے۔ تو آئے دن شکایتیں، آئے دن لوگوں کی کرائے، کرپشن جو ہے نا ناسور ہو گیا ہے۔ اگر اس کو ٹائم پر اس کا علاج نہیں کیا گیا، کاٹا نہیں گیا تو وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہاں تو میرے خیال وہ لوگ بھی ظاہر ہو گئے تھے جو اس کرپشن میں ملوث تھے۔ ان کا کوئی اچھی کمپنی، کوئی اسٹار پتہ نہیں کس نام سے تھی، جو بھی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میئر صاحب نے اس میں اپنا دکھایا کہ بھائی کہ وہ سکھر کی عوام کے ساتھ ہیں، انہوں نے کمیٹی بنائی۔ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو، سکھر کے جو مسائل ہیں جس پہ خاص طور پر صفائی کا نظام ہے، سیوریج کا نظام ہے، پینے کا پانی ہے، اس کو میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی جواب دہ وہ لوگ خود ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میئر سکھر کو کراچی کی مصروفیات سے فرصت ہی نہیں ملتی اور سکھر کے مسائل یوں ہی نظر انداز ہو رہے ہیں۔ سکھر کی عوام کی نظریں اب بھی میئر سکھر کی جانب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب ان وعدوں کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ کیمرامین حمید گل کے ساتھ جانی بھٹی، 5 نیوز، سکھر۔ ایس ایس پی میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چنہ کی جانب سے 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایس ایس پی آفس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں اہل تشریح، مکتب فکر کے علماء کرام،
मातमी जुलूसों और मजालिस के मुंतज़मीन ने शिरकत की। इजलास में शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मुनक़िद किए जाने वाले जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। SSP डॉक्टर समीर नूर चन्ना की जानिब से मुंतज़मीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात की यकीन दहानी कराई गई, जबकि ताक रातों में भी सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से बताया गया। इस मौके पर SSP मीरपुर खास का कहना था कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के एतराफ़ में मोटरसाइकिल गश्त को भी मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। SSP ने शुरका को यकीन दिलाया कि तमाम इदारे मसलन ज़िला इंतज़ामिया, वापडा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी योम अली की मुनासबत से ऑन बोर्ड लिया जाएगा। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ दादू में भी सिविल सोसाइटी, आर्टिस्ट और खवातीन सियाह झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत नहरें निकालने का फैसला वापस ले। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में जान। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने वाले फैसले से दस्तबरदार न होने पर सिंध के दीगर अजला की तरह दादू की 17 लाख आबादी मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दादू जिला की 4 तहसीलों दादू, जोही, मेहर और तहसील खैरपुर नाथन शाह में शहरियों ने सियाह झंडे उठाकर मकामी प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज नोट कराया और दरिया सिंध से निकलने वाली 6 नहरों को मुस्तरद किया। वैसे तो पूरी सिंध जो है वो एहतजाज में है। आज दादू अवामी फोरम की जानिब से ये दरियाए सिंध की बका के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। सिंधु दरिया हम सिंध का जियापा है, हमारी लाइफ लाइन है, हमारी ज़िंदगी है। हम पंजाब को, वफाक को ये कहते हैं कि खुदा रा ऐसे ना करें, मुल्क से ना खेलें। हम मोहब्बे वतन हैं। आज जो ये हमारी रैली है सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध की तरफ से है और ये जो रैली निकाली गई है ये सिंध के जो ऊपर कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ है। अपने सिंधु दरिया को बचाने के लिए सिंध के ज़मीन पे कब्जे के खिलाफ ये भरपूर धरना, भरपूर रैली जो सिंध प्रेस क्लब, दादू प्रेस क्लब तक ले जा रहे हैं। हमारे सिंध के लोग वो देहाती हैं और ज़मीन करते हैं, खेती करते हैं। हमारे पास पानी नहीं होगा, हम जो ये मर जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि दरिया सिंध से निकलने वाली 6 नहरें वो सिंध की 7 करोड़ आबादी के लिए सांप की तरह है। वफाकी हुकूमत अपना फैसला वापस ले। अल्लाह बख्श खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। ईद करीब आते ही शहरों और मार्केटों में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो जाता है। मुल्तान पुलिस स्ट्रीट क्राइम में इजाफा रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है, मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाहत हुसैन से। जी मलिक वजाहत हुसैन, आका कीजिएगा। आते ही शहरों और मार्केटों में स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा देखने को आ रहा है, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ साहब। उनसे जानते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम के रोकने के लिए जो क्या इकदाम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान क्योंकि एक बिजनेस हब बन चुका है, साउथ पंजाब का बिजनेस हब है और मुल्तान में ज़िंदगी की तमाम सहूलतें जो है ना अब इस वक्त इतनी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो गई हैं कि साउथ के जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो अपनी ज़रूरतें यहाँ पूरी करते हैं। अब तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल्स को देखता हूँ, इस तरीके से 1000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल भी मुल्तान में काम कर रहे हैं। कोयटा से लेकर पिशावर तक के तमाम लोग अपनी हेल्थ की ज़रूरियात यहाँ से लेते हैं, शॉपिंग यहाँ से करते हैं। और जिस तरीके से मुल्तान की एक्टिविटी 7/24 आ रहा है और रमज़ान शरीफ में जिस तरह लोगों की गहमा गहमी है, लोग रोज़े के लिए तैयारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, उस तरीके से ईद की तैयारी के लिए अपनी परचेजिंग, कपड़े और अपनी तमाम ज़रूरतें यहाँ से लेते हैं। जो ये रौनक नज़र आ रही है उस तरीके से क्रिमिनल भी मुल्तान का रुख करते हैं। उनके रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पुलिस ने CPO साहब की ज़ेर निगरानी क्राइम को रोकने की स्ट्रेटजी तैयार की है। उसमें हमने अपने डाल्फिन की तादाद को डबल किया है, मुहाफ़िज़ की तादाद को डबल किया है और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी मोबाइल थानों की उनकी डबल पेट्रोलिंग है और वो 7/24 आवर है। इस तरीके से जो ट्रैफिक के साथ हमारी लाइजॉन और कोऑर्डिनेशन है उसमें भी हमने एक्स्ट्रा पुलिस लगा के ट्रैफिक की कंजेशन को जहाँ कम किया है वहाँ पे उनके साथ कांस्टेबल जो ड्यूटी कर रहे हैं, पॉइंट ड्यूटी 43 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ से क्रिमिनल को रोकने के हमने तमाम रास्ते उनके मसदूद कर दिए हैं। और जो इस वक्त क्राइम की रजिस्ट्रेशन है पिछले साल की निस्बत कम हो रही है क्योंकि 15 की कॉल भी कम है और क्राइम को रोकने के लिए जो क्रिमिनल हैं, मिसिंग गैंग मेंबर्स हैं, जो हमारे इश्तिहारी हैं,
उनकी डेली बेसिस पे हर थाने में डोर नॉकिंग हो रही है और JTT हमारी जॉइंट टास्क टीम भी उनकी सर्च एंड स्वीपिंग कर रही है। मैं होपफुल हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त क्राइम की शरह रुकी हुई है और 15 की कॉल भी रुकी हुई है, वारदात भी कम हुई है, क्रिमिनल को हमने मैसेज कन्वे कर दिया कि जो मुल्तान की हदूद में कहीं दाखिल होगा वो अरेस्ट हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम और इसको कमी के लिए हमने जो मार्केट्स हैं और यहाँ पर इसके अलावा हमने गश्त के निज़ाम को मौसर कर दिया और इसके साथ साथ हमने डॉल्फिन फोर्स भी तैनात कर दिया ताकि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से बचने के लिए एहतियात हासिल की जाए। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी गई। फूड सेफ्टी टीम ने 100 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद करके मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की मखवाना बाईपास पर सप्लायर गाड़ी की चेकिंग के दौरान 100 मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली गईं। मुर्दा मुर्गियां मज़दे में बोरियों में बंद करके चीपा को दे दी गई थी और वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने मुर्गियों को तफसीली जायजे के बाद मुज़र सेहत करार दिया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तैयार करके सप्लाई किया जाता था। कसूर में महकमा सेहत के रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत को आउटसोर्स करने के फैसले के खिलाफ महकमा सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया और हुकूमत से फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से देखते हैं कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह कसूर में भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़े सेहत को आउटसोर्स करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ महकमा सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आउटसोर्सिंग से साल से आवाम की खिदमत करने वाले लाखों मुलाजमीन का माशी कत्ल होगा और मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निजकारी का निज़ाम शुरू किया है, BHUs, RHCs और इदारों का। ये पहली बात तो है कि 73 आइन के खिलाफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये निजकारी कर रहे हैं तो बजाय इससे कि अवाम तक बेहतरीन सहूलियात पहुँचेंगी, ये जिनको निजकारी की जा रही है, जो ठेकेदार है वो अपने मुताबिक सिस्टम को चलाएगा, वो पैसे बचाने के चक्कर में होगा, वो डिलीवरी सही नहीं देगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म कर दिया था, हमें बगैर नोटिफिकेशन के घर भेज दिया था। हम 3 माह हो गया घरों में बैठे। मुजाहिरीन का कहना था कि आजकल पंजाब भर में एक ही नारा गूंज रहा है कि वो आ गई सब्दी माँ। महकमा हेल्थ के तमाम मर्द व खवातीन मुलाजमीन इस माँ की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। और अब अचानक से कह दिया प्राइवेटाइजेशन होनी है, कोई रेगुलर नहीं। रेगुलर ना करें भैया, आप तो हमें नौकरियों से ही फारिग कर रहे हैं। माँ से कहें माँ बने और ना कुछ बने, माँ बन के बच्चों को आके देखें। जब माँ इस तरह की हो तो बेटियां इस तरह सड़कों पे नहीं होती हैं। महकमा हेल्थ के सैकड़ों मर्द व खवातीन मुलाजमीन ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। महकमा हेल्थ के मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब से एक ही मुतालबा है कि ऑफ सोर्स किए जाने वाले BHU और RHC को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। सादिकाबाद तहसील में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर ना होने पर किसान परेशान। किसानों ने 5000 फी मन गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं बख्तू जान से। जी बख्तू, आगा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सादिकाबाद में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और जो किसान है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो गंदम का रेट है वो मुकर्रर नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ जो है जिली नायब सदर किसान बोर्ड के हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा जो गंदम का रेट गवर्नमेंट की वजह से तरफ से ना रखा गया है उस पर आप क्या कहेंगे? जी भाई, इस वक्त किसान का सिर्फ एक ही मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि फौरी तौर पे गंदम का रेट कम से कम वो अनाउंस किया जाए जो ज़री मदाखिल हुए हैं, गंदम पे जो अखराजात आए हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। कम से कम किसान को अपनी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। ज़मीनों के ठेके बढ़ गए हैं, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, खादों के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन गंदम का रेट उल्टा बढ़ने के इन्होंने कम कर दिया है। मेहरबानी करे गवर्नमेंट पंजाब से, हमारा किसान का, पंजाब के किसान का यही मुतालबा है कि कम से कम जो उनके रेट हैं उनको फसलों के रेट कम से कम सही मिलने चाहिए। गंदम का रेट इस वक्त अगर किसान को ना मिला, पिछले साल की तरह किसान रुल गया गंदम के रेट की वजह से, तो आगे फसल काश्त करने के लिए गंदम किसान के पास अखराजात भी नहीं है अगली फसल काश्त करने के। मेहरबानी करें और फिल फोर गंदम का रेट अनाउंस करें ताकि किसान को ऑक्सीजन मुहैया हो
اور کسان کے کوئی اخراجات پورے ہوں۔ آج یہ آپ نے کسان رہنما کی بات سنی جن کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کم گندم کا جو فی من ریٹ ہے وہ 5000 رکھا جائے تاکہ جو کسان کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ جی بلیٹن کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وابڈا احمد پور شرکیہ کی نااہلی سے محلہ نور شاہ بخاری کے مکین شدید پریشان، بجلی کی زمین کو چھوتی تاریں خوف کی علامت بن گئی، راہگیروں اور لوگوں کا گھر سے نکلنا تک مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل 5 نیوز مفیظ الرحمان سے۔ جی مفیظ، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں احمد پور شرکیہ محلہ نور شاہ بخاری عقب MC ہائی اسکول کے موجود ہوں، جہاں پہ گھروں کے باہر مین جو الیکٹرک کی جو تاریں ہیں وہ کھمبوں سے گر کے زمین کو چھو رہی ہیں، جس سے انتہائی خطرہ لاحق ہے کہ یہاں سے گزرنے والے خواتین، مرد، بچوں کو جانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری ہیں، انہی سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بجلی کی تاریں ہیں انہیں اچھے سے ٹھیک کیا جائے، اور یہاں سے بچے گزرتے ہیں انہیں بہت مشکل ہوتی ہے، اگر بارش ہو جائے تو اس میں بھی بہت مشکل ہے، کسی کو عرص لگ سکتا ہے۔ تو حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کیا جائے، جو بجلی کی تاریں انہیں اوپر کیا جائے تاکہ جو لوگ گزرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، یہ ہماری ہے گزارش، اس پر اپیل کیا جائے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ تاریں جو ہے کسی بھی جان لیوا حادثے کا ہو سکتی ہیں، لہٰذا وابڈا سے ان کی اپیل ہے کہ ان تاروں کو فی الفور اونچا کیا جائے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی حافظ آباد کی جانب سے جشن اسٹیم میں لیپ ٹاپ طلبہ میں تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ آباد سے مہر فاروق احسان اپنی اس رپورٹ میں۔ حافظ آباد میں منعقد جشن اسٹیم لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں ان ہونہار طلباء کو لیپ ٹاپ دیے گئے جنہوں نے پنجاب بھر میں مختلف تعلیمی و اسٹیم مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تقریب میں پاکستان مسلم نون کی ضلعی رہنما سائرہ افضل تارڑ، MPA حضرات اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی شرکت۔ طلباء اور طالبات کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تعلیمی ویژن کو سراہا اور کہا کہ یہ اقدام طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے میں مدد دے گا۔ بہت اچھا سپر CM صاحبہ کا پروگرام ہے، اور جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے انہوں نے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہ بچے جو ان کے چہرے پہ خوشی ہے، ان میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ جو شاید پوری زندگی لے ہی نہ سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے تعلیم میں اور باقی شعبوں میں محنت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے CM صاحبہ انیشیٹیوز لے رہی ہیں، آپ ان قریب دیکھیے گا کہ پنجاب بھاگے گا نہیں دوڑے گا۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں مزید بہتر ہوگی۔ والدین اور اساتذہ نے بھی اس حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے اسے تعلیمی میدان میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر فاروق احسان، چینل 5 نیوز، حافظ آباد۔ DC گجرانوالہ نوید احمد کی ہدایت پر ماہ سیاح میں گجرانوالہ شہر بھر میں گراں فروشی اور خود ساختہ مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ACHR سائمہ خان نے متعدد دکانیں سیل کر دیں اور بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے حاجی ظفر اللہ چودھری سے جانیں گے۔ جی ظفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ شہر میں اگر دیکھا جائے گراں فروشی اور یہاں پر خود ساختہ مہنگائی جو ہے اس کو پر لگ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں DC گجرانوالہ نوید احمد کی ہدایات پر یہاں پر جو ہے کریک ڈاؤن شہر بھر میں جاری ہے گراں فروشوں کے خلاف۔ اس وقت میں آلن چوک کے قریب موجود ہوں، یہاں پر ایک شاپ جو ہے فروٹ کی، یہاں پر ڈبل ریٹ وصول کیے جا رہے تھے۔ آج یہاں پر کریک ڈاؤن کے سلسلے میں ACHR یہاں پر سائمہ خان جو ہے وہ یہاں پر کریک ڈاؤن کرتی نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پر دکانداروں میں جو یہاں پر ڈبل ریٹ لگائے اس کو چیک کر رہی ہیں، اور میرے پاس یہاں پر وہ موجود ہے، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا آیا کب اس حوالے سے کیا کس قسم کا وہ ایکشن لے رہی ہیں۔ میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے، یہاں پر فروٹ کے ریٹ چیک کیے ہیں، تو کتنا ریٹ ان کا زیادہ ہے؟ ان کا ریٹ جو ہے نا معمول سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے بعض فروٹس کے اوپر جو ہے دگنا قیمتیں لگائی ہوئی ہیں، جیسے انار ہے اور یہ سیب ہے اور کیلا ہے۔ تو اس پہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے، میں نے پیچھے سے اپنے بندے کو بھجوا کے یہ پتہ کیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ میں خود آئی ہوں یہاں پہ تو مجھے اس نے یہ بتایا ہے۔ تو میں یہ ان کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ پبلک کو اگر آپ اس ریٹ پہ ڈیلی بیچیں گے نا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے
और रियासत की रेट को चैलेंज करना भी अच्छा नहीं है। तो इनका यही है कि इनको हम पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर ये दोबारा इस चीज़ को दोबारा वायलेशन करते हैं तो फिर इन पर कोई मुकदमा भी दर्ज होगा? हाँ बिल्कुल, इसके बाद इनके पास नो जो है ना एक्सक्यूज़ है कि ये अगर ये समझ लेते हैं कि मैंने अब दोबारा इनको फाइन करना है या सील करना है, तो ये इन मत सोचे, आइंदा इनको हमने पुलिस के हवाले करना है और ये 7 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो फिर खुद इनके रेट ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मैडम की बात सुनी, उनका कहना है कि बिल्कुल इनको सील किया जा रहा है, इनको फाइन भी किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह शहर भर में जो है ग्राम फरोशियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जी कमीर शरीफ में ईद के करीब आते ही शहरियों ने अपने बच्चों के साथ ईद की खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख तो कर लिया, मगर महंगाई की वजह से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक अबरार खोकर की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के करीब आते ही कमीर शरीफ के शहरियों ने अपनी फैमिली के हमरा खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कोई मुख्तलिफ किस्म के पहनावे मैचिंग कपड़े खरीद रहा है तो कोई जूते खरीदता दिखाई दे रहा है। खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। जहां बड़े और खवातीन खरीदारी कर रहे हैं, वहीं पर बच्चे भी किसी से कम नहीं अपनी पसंद के पहनावे खरीदते नजर आ रहे हैं। खवातीन और बच्चे महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। ईद की शॉपिंग करने आया हूँ और ना यहाँ पे रेट बढ़ा है और महंगाई बहुत हो गया और मैं यहाँ से सामान लेके जाऊँगा। जो चीज़ पूछता हूँ वो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाई होती है, 8,000, 9,000, 10,000। हम कोई चीज़ लेके जाएं या ना लेके जाएं ये पता ही नहीं चल रहा। शॉपिंग करने के लिए आए, आप महंगाई थोड़ी सी कम करो, मेहरबानी आपकी, और थोड़ा सा महंगाई कम कर दो। ईद उल फितर के मौका पर दुकानदारों के कारोबार में भी काफी हद तक इजाफा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि ग्राहक रेट सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। माशाल्लाह जिस तरह साड़ी दुकानदारी के हिसाब नाल चल रहा है, पहले वाला सिस्टमेशन है, जिस तरह सिचुएशन अपनी जा रही सी उस नालों काफ़ी हद तक साड़ी सेलिंग भी अच्छी जा रही है, लेकिन कस्टमर हजे भी आते साढ़े नाल महंगाई के तलक दे विच कह रहे हैं कि थोड़ा जिहा महंगाई ज़्यादा है, या दुपट्टा 100 रुपये वाला या 1000 रुपये वाला जो दुपट्टा इनका 500 रुपये लगा रहे हैं, 500 वाला दुपट्टे का 300 रुपये लगा रहे हैं। मतलब कि हर तरह की हुण नैट इहदे विच 100 रुपये वाली चीज़ है, इनका 75 रुपये लगा रहे हैं। कस्टमर मसलन के काफ़ी ज़्यादा महंगाई तो परेशान है। इस नेक और बाबरकत महीने का दूसरा अशरा जारी है। रोज़ों के साथ साथ शहरी ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ हैं और हुकूमत से महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कमीर शरीफ के मुख्तलिफ बाजारों में जो है रश देखने में आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि ईद करीब आते ही शहरियों ने, खवातीन, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों ने, तमाम ने ईद की तैयारी के लिए अपनी अपनी जो खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रखा है। शहरी जो हैं वो अपनी अपनी ईद की तैयारी की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम की हमरा मलिक इब्रार खोकर 5 न्यूज़ कमीर शरीफ। मुस्तफ़ाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ऑर्फन केयर सालाना यतीमी डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुनक़िद तकरीब में यतीम बच्चों को ईद के हवाले से तोहफ़े भी पेश किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से दार अकरम स्कूल मुस्तफ़ाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुकर्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना यतामा डे मनाया जाता है, जिसमें बाहिम्मत ख़वातीन के बाहिम्मत बच्चों की कफ़ालत करते हैं, उनकी तालीमी अखराजात उनकी रिहाइशगाह पर उन्हें फ़राहम करते हैं ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके बेहतरीन शहरी बन सके। आज इन बच्चों और उनकी माओ को ईद के हवाले से तोहफ़े भी पेश किए गए, जहाँ पर 50 बच्चों को उनके तालीमी अखराजात अपने ज़िम्मे लिए गए, जबकि ईद के हवाले से यतीम बच्चों और उनकी माओ को तोहफ़े पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने बच्चों से इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि शजरकारी हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत है, तमाम बच्चे अपने अपने घरों में शजरकारी करें। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि बिहारी के नवाही गांव तेज़ गुजरांवाला में पीर सैयद अमीर हुसैन शाह काज़मी के सालाना उर्स के मौके पर पंजाब का रिवायती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। घुड़सवारों ने अपनी फ़नी महारत से बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। आपको बताएं बिहारी के नवाही गांव तेज़ गुजरांवाला में सालाना नेज़ाबाजी के मुकाबलों में पाकिस्तान भर से नेज़ाबाजी के क्लबों ने शिरकत की, जिसमें माहिर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। नेज़ाबाजी का मुकाबला देखने के लिए दूर दराज से शायकीन ने भरपूर शिरकत की। घुड़सवारों ने अपनी फ़नी महारत से बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। नेज़ाबाजी के मुकाबलों में घोड़ों ने ढोल की ताल पर रक्स भी किया। शहसवारों ने घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की कमाल महारत का मुजाहरा किया। ईद उल फितर के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। खानेवाल के दर्जियों ने सिलाई की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। तफसीलात मोहम्मद आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में जानेंगे।
साल के शहरी ईद उल फितर के करीब आते ही परेशानी में मुब्तला हो गई। दर्जियों ने सिलाई की कीमतों में दुगना इजाफा कर दी। शहरी कहते हैं कि इस महंगाई के दौर में पहले महंगा कपड़ा खरीदना मुश्किल, दर्जियों ने सिलाई की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गरीब के लिए सिलाई करवाना मजीद मुश्किल बना दिया। सादा सूट की सिलाई 1200 से लेकर 1500 तक वसूल की जा रही है। डिजाइन वाले मलबूसात की उजरत 1800 तक वसूल की जा रही है। शहरी कहते हैं कि ईद नजदीक है और नए सूट भी सिलवाने हैं। भजन ये लोग अपनी जगह पे देखें, इन लोगों के लिए भी मसाइल हैं। जहाँ आवाम के लिए 3 सूट की बजाय अब आवाम भी 1 सूट पे मजबूरन आ गई है और इन बेचारों के अलहदा से मसाइल हैं। बिजली के कमर्शियल यूनिट का रेट गवर्नमेंट ने कहाँ से कहाँ कर दिया है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन लोगों को रिलीफ मिले, बिजली के रेट कम हो, उससे आवाम भी जहाँ साफ रहे। सोचते हैं लोग जितने का सूट है उतने में आवाम को सिलाई पड़ रही है, तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। दूसरी जानिब टेलर मास्टर का कहना है कि सिलाई की कीमतों में इजाफा कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने की वजह है। भैया हमारा हर साल मटेरियल महंगा होता है, पीछे से हमें मटेरियल नहीं मिलता है, इसकी वजह से हमें इजाफा करना पड़ता है, इसलिए हम सिलाई बढ़ानी पड़ती है। हमें कारीगरों को हमें हर साल बढ़ाना पड़ता है। कारीगरों को गुजारिश है कि बिजली सस्ती करें और हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें। खाने वाले की आवाम का यही कहना है कि हफ्तों में जो इजाफा किया गया है वो फिलफौर वापस लें ताकि गरीब आदमी भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। कैमरामैन राणा इफ्तिखार के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़, खानेवाल। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे ही बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर पीको और काज की दुकानों पर आवाम का ज़बरदस्त हुजूम नज़र आ रहा है। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मुरसलीन हसन जतोई से। जी मुरसलीन, आगा कीजिएगा। जी, जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आता जा रहा है बाज़ारों में लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर पीको और काज की दुकानों पर लोगों का जो है काफ़ी हजूम नज़र आ रहा है, जहां पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैंसी बटन और स्टड हैं उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ यहां पर एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई बिल्कुल ऐसे जैसे ही ईद का जो है ना करीब आ रही है, ईद का रश बढ़ता जा रहा है और हमारे पास नलकी और फैंसी बटन वगैरह मौजूद हैं और जो कि होल सेल रेट पर दस्तयाब होते हैं और नई नई वैरायटी और फैंसी डिज़ाइन के स्टड वगैरह हमारे पास मौजूद होते हैं। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की ज़बानी सुना, इनका यही कहना है कि यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और ईद की जो है यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं और दुकानदार भी जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वक्त पर लोगों को जो है कपड़े दे सकें। जी, 18,000 मुँह खर की वबा बेकाबू। महकमा लाइव स्टॉक की मुबैना गफलत से किसानों को भारी नुकसान का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। 18,000 मुँह खर की वबा बेकाबू। महकमा लाइफ स्टॉक की मुबैना गफलत से किसानों को भारी नुकसान का खदशा है। मोज़ल्ला शहरी में किसानों के कई जानवर हलाक हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी बीमार। महकमा लाइफ स्टॉक की मुबैना गफलत से जानवर की वैक्सीनेशन ना हो सकी। महकमा लाइफ स्टॉक की मुबैना गफलत से मुँह खर की वबा तेज़ी से फैलने लगी। मुँह खर से जानवर को तेज़ बुखार, मुँह में छाले पड़ने लगे हैं और मुँह खर होने से जानवर के पाँव भी गलने लगे हैं। बर वक्त इलाज ना मिलने से जानवर मरने का खतरा होता है। किसानों का कहना है कि हमारे इलाके में वैक्सीनेशन नहीं की गई जिससे हमारे जानवर हलाक हो रहे हैं। साडा मोहल्ला शहरी दे विच मुँह खोरे दी बीमारी आई हुई है ते साडे डोर एक्सपायर भी हो गए, मर भी गए, बाकी डोर काफ़ी बीमार भी खलन। साडे जेड़े 2-3 खूह ने तकरीबन 40-50 डंगर बीमार भी होए, मर भी गए। किसान कहते हैं कि देसी टोटके या फिर प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाने पर मजबूर है। वैक्सीनेशन न होने से दूध और गोश्त की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने महकमा लाइफ स्टॉक की मुबैना गफलत पर हुकूमत से फौरी कार्रवाई और वैक्सीनेशन शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहबाज सिराज के साथ मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18,000। शुजाबाद में भी निगहबान रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम में कटौती करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशिर ने मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकूम से कटौती करने वाले मोहम्मद बिलाल की दुकानदार और रिटेलर्स की दुकान सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशिर ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार रिटेलर्स की दुकान सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पाक पतन इंतजामिया की जानिब से स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इकदाम जारी हैं। ज़िम्न में सरकारी स्कूलों में शजरकारी भी जारी है। पाक पतन के सरकारी स्कूलों में शजरकारी की भरपूर मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक का कहना है कि तलबा को दरख्तों की अहमियत और अफादियत से आगाह करने के साथ साथ बच्चों में पौधे तकसीम भी किए जा रहे हैं ताकि उनमें शजरकारी की आदत परवान चढ़े।
बहावलपुर पुलिस ने वहीद लंगड़ा राजपूत डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 1 करोड़ से भी ज़ायद की गाड़ियां और नकद रकम बरामद कर ली। बहावलपुर में गाड़ी चोरी की मुतादिद वारदात में मुलविस वहीद लंगड़ा राजपूत गैंग को सरगना समेत 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की चोरी शुदा गाड़ियां और नकद रकम बरामद कर ली। DPO बहावलपुर के वाज़ेह अहकामात हैं कि अवाम उन्नास को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंबट में भी सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ शागिर्द इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसील जहीर हैदर शेख से जानेंगे। जी जहीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे सिंध भर की तरह गंबड़ में भी जो है सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ जो है शागिर्द इत्तेहाद की जानिब से फुलबाग गंबड़ से प्रेस क्लब गंबड़ तक जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है। आए मजीद यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। खुदा को माने, रसूल को माने, जो हमारा फंडामेंटल राइट, जो हमारा पानी है वो भी आप बेच रहे हैं। कुछ होश के नाखुन लें। अगर पूरा सिंध यहाँ पे उठ गया तो आप अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। तरीके से निकले हैं और ये पूरी सिंध का जो है ना, जो ज़राअत है उस पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो पानी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़राअत ख़त्म हो जाएगी और ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो चोलिस्तान है वो तो ऑलरेडी है ही बंजर, तो उसको आबाद करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी आपने लोगों की बातें सुनी, उनका कहना है अगर हमसे ये पानी छीना जाएगा हमारी जो सिंध है वो पूरी बंजर बन जाएगी। हम जो ये किसी भी कीमत पर ये कैनाल बनने नहीं देंगे। कैमरामैन हसन खालिद के साथ जहीर हैदर शेख, 5 न्यूज़ गंबड़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।